हम सब कॉलेज में एक सपने को लेकर आते हैं और उन सपनों को यादगार बनाती है हमारी पूरी कॉलेज जर्नी। और इस पूरी जर्नी का सबसे खास, खूबसूरत और अंतिम पड़ाव होता है कॉन्वोकेशन, क्योंकि ये सिर्फ एक सेरेमनी नहीं है बल्कि हर उस मेहनत, संघर्ष और जज्बे का जश्न है जो हमें इस अंतिम मंजिल तक लेकर आता है। और इसी के चलते वडोदरा के विश्व प्रसिद्ध पारुल यूनिवर्सिटी में, जहां दुनिया भर के छात्र डिग्री हासिल करने आते हैं, फॉरेन नेशनल स्टूडेंट्स के लिए एक खास कॉन्वोकेशन सेरेमनी का आयोजन किया गया है। शिक्षा, संस्कृति और वैश्विक एकता का अद्भुत संगम है वडोदरा की पारुल यूनिवर्सिटी। वहीं पारुल यूनिवर्सिटी में स्पेशल कॉन्वोकेशन सेरेमनी का आयोजन किया गया, जिसमें 20 से अधिक देशों के अंतर्राष्ट्रीय छात्र एक मंच पर आए। इस गौरवशाली अवसर को और भी खास बनाया भारत सरकार के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने, जो कि कॉन्वोकेशन सेरेमनी के मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे और छात्रों को प्रेरणादायक संबोधन से शिक्षा को राष्ट्रों के बीच सेतु बताया और भारत को एक वैश्विक शिक्षा केंद्र के रूप में सराहा। साथ ही इस मौके पर ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र भी हुआ। इस समारोह में 720 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को डिग्री वितरण की गई, जिनमें से 600 से अधिक छात्रों ने स्वयं मंच पर आकर इस सफलता को महसूस किया। साथ ही मौजूद थे 20 से अधिक विदेशी अधिकारी, 100 से ज्यादा अभिभावक और कुल मिलाकर 6000 से अधिक लोग इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बने। पारुल यूनिवर्सिटी में हर साल देश विदेश के छात्र एक सपना लेकर डिग्री हासिल करने आते हैं। उनके उसी सपने को मंजिल मिलने जा रही है इस कॉन्वोकेशन के जरिए। जैसा कि आप मेरे चारों तरफ देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो छात्र मौजूद हैं, उनके पूरे साल की मेहनत का जवाब है ये कॉन्वोकेशन। इनके लिए कॉन्वोकेशन एक अंत नहीं है बल्कि एक नई शुरुआत है। यहाँ से उनके लिए कई दरवाजे खुलेंगे और भविष्य में जाकर वो हमारे भारत देश का और अपने देश का नाम उज्जवल करते हुए हमें जरूर नजर आएंगे, ये आशा है हमारी। कॉन्वोकेशन सेरेमनी की सबसे खास बात यह है कि भारत के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर चीफ गेस्ट के रूप में पधारे हैं और ये हमारे वडोदरा शहर के लिए भी एक बेहद गौरव का विषय है कि भारत के फॉरेन मिनिस्टर हमारे शहर में पधारे हैं। Graduation of nearly 700 foreign students of Parul University. Today is a very special day for all of you, and I would like to congratulate each and every one of you. At Parul University has not just been about learning from books, but it has been about growing as individuals, respecting new cultures, and most importantly, becoming a part of global community here at Parul University. It is a defining moment in the personal lives of those completing their degree. The thoughts that I share with you on such an occasion is meant for both. It is natural when standing before graduating foreign students to talk about the importance of international cooperation. After all, your studies, your stay in India is an expression of that very concept. Terrorism would surely rank high in that list. Recent events have only sharpened our awareness. In Pahalgam, what we saw was an attempt to devastate the tourism economy of the Union Territory of Jammu and Kashmir, as well as an evil design to sowing religious discord. The barbarity of the killings required an exemplary response, which was delivered by destroying terrorist command centers, especially in Bhavalpur and Muridke. It is imperative that those who sponsor, nurture, and utilize terrorism for their ends are made to pay a high cost. That it warranted a forceful response even after the 26/11 attack in Mumbai in 2008 is widely acknowledged.
But times have changed, and our resolve is much stronger now. Terrorism epicenters are no longer immune. India's zero tolerance for terrorism is manifest today through its actions. We will never give in to nuclear blackmail, and whatever decisions have to be taken in India's national interest are taken and will continue to be taken. As we responded to the Pahalgam attack, it was also heartening to witness the understanding from other nations of our right to defend ourselves against terrorism. There are other pressing challenges too faced by the world, especially by our brothers and sisters of the global south. गुजरात के वडोदरा में स्थायी समिति की बैठक हुई जिसमें कई विकास कार्यों को मंजूरी मिली। वडोदरा महानगर पालिका की स्थायी समिति की बैठक में वडोदरा के विकास कार्यों पर चर्चा की गई, जिसमें 3 विकास कार्यों को स्थायी समिति के सदस्यों की अनुमति से पारित किया गया है। आज स्थायी समिति में टोटल 3 दरखास्त चढ़ावવામાં આવી હતી। 3 दरखास्त मंजूर કરવામાં આવી છે। दक्षिण जोन में वार्षिक इजाराथी थर्मोप्लास्टिक पेंटना पट्टा पाडવાનું કામ હતું 34.30% ઓછા, જે 1 કરોડ 10 લાખની મર્યાદા હતી એ મર્યાદા ઘટાડી અને 50 લાખની મર્યાદા કરી છે। ફરી મર્યાદા એક્સટેન્ડ કરવા માટે સ્થાયી સમિતિની પૂર્વ મંજૂરી લેવાની રહેશે। ઉત્તર ઝોનમાં સિયાબાગમાં વોર્ડ નંબર 5ની જૂની કચેરી હતી એની જગ્યાએ નવીન અર્બન હેલ્થ સેન્ટર બનાવવાનું કામ છે, જે 18% વધુ મુજબ 1,43,17,162 વત્તા GSTના ભાવપત્રને મંજૂરી આપવામાં આવી છે। સેન્ટ્રલ સ્ટોર દ્વારા જે અગ્નિ શાંતિ શાખાના કર્મચારીઓ છે 227 જેટલા કર્મચારીઓ માટે જે ગરમ કપડાં લેવાના દર 3 વર્ષે ગરમ કપડાં લેતા હોય છે એ કામ 4.78% ઓછા 39,83,572 રૂપિયાના ભાવપત્રકને મંજૂરી આપવામાં આવી। गुजरात के वडोदरा में फतेहगंज इलाके में स्थित सैफरन 4 रास्ता के पास फेथ फाउंडेशन द्वारा वर्ल्ड नो टोबैको डे के उपलक्ष्य में एक खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वर्ल्ड नो टोबैको डे के उपलक्ष्य वडोदरा के फतेहगंज इलाके में स्थित सैफरन 4 रास्ता के पास फेथ फाउंडेशन द्वारा फ्लैश मॉब के माध्यम से लोगों को तंबाकू के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक किया गया। फेथ फाउंडेशन द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में युवाओं ने अलग अलग गीतों पर नृत्य प्रस्तुत कर लोगों का ध्यान आकर्षित किया और तंबाकू से होने वाले नुकसान को जीवंत रूप से दर्शाया। हर साल 31 मई को विश्व भर में वर्ल्ड नो टोबैको डे मनाया जाता है और इसी कड़ी में वडोदरा में भी सैफरन टावर के पास इस जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कई सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। फर्स्ट में वर्ल्ड नो टोबैको डे है और जो ये साल का थीम जो है अनमास्किंग द अपील, जो टोबैको इंडस्ट्री की जो टैक्टिक्स जो है कि अलग अलग माध्यम से युवाओं को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, तो उनके सामने ये जनजागृति कार्यक्रम एक किया जा रहा है कि उनको एक तंबाकू मुक्त जीवन शैली, एक हेल्दी लाइफस्टाइल प्रमोट किया जाए। और हम ऑलमोस्ट पिछले 20 दिन से ये प्रोग्राम्स कर रहे हैं और 22 तारीख को हमने भावनगर में प्रोग्राम किया, सूरत में प्रोग्राम किया और आज ये यहाँ पर ये एक फ्लैश मॉब आप देख रहे हैं फेथ फाउंडेशन के ये वॉलेंटियर्स हैं और ये वॉलेंटियर्स यहाँ पर ये फ्लैश मॉब करके लोगों को मैसेज दे रहे हैं कि तंबाकू मुक्त जीवन शैली जियो और नशा छोड़ो और जीवन को चुनो। अंगदान को लेकर जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से वडोदरा में एक खास कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है, जिसकी जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी गई। अंगदान को लेकर जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से वडोदरा के नवलखी ग्राउंड पर 1 जून को आयोजित होने वाले साइक्लोथॉन कार्यक्रम के संदर्भ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस आयोजन में साइक्लोथॉन के संयोजक हेमांग पंजाबी समेत अंगदान चैरिटेबल ट्रस्ट के सदस्यों ने कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी दी। इंटरनेशनल साइकल डे है 3 जून, पण 2 દિવસ પહેલા 1 જૂનના દિવસે આ સાયકલ ડે નો અમે એક અવસર સમજીને 1 જૂનના દિવસે
વડોદરાવાસીઓ સાથે અમે સાયક્લોથોન કરી રહ્યા છે. અત્યાર સુધી 700થી વધારે લોકોએ આ સાયક્લોથોન માટે રજીસ્ટ્રેશન કર્યું છે અને 15 કિલોમીટરનો સાયક્લોથોનનો રૂટ છે નવલખીથી નવલખી સુધી. વહેલી સવારે 5 વાગ્યાથી માંડીને બધા સાયકલિસ્ટ આવશે. એમને અમે એક દિવસ એડવાન્સ એટલે આવતીકાલે જ એમને બધાને અમે ટી શર્ટ વિતરણ કરવાના છે. સાથે સાથે સંભવ હોય તો આ બધા જ સાયકલિસ્ટ જે આવશે એ નોટોની સાઇટ ઉપર ઓર્ગન ડોનેશન માટે પ્લેજ કરશે અને તે દિવસે વિવિધ પ્લેટ કાર્ડના માધ્યમથી સ્લોગન્સના માધ્યમથી અંગદાન મહાદાન અંગદાતા જીવનદાતા છે એવા વિવિધ સ્લોગનના માધ્યમથી અંગદાન જાગૃતિનો પ્રયાસ વડોદરામાં થશે. 5 સાયકલો અમે સાયક્લોથોનના અંતે લકી ડ્રોના માધ્યમથી જે કોઈ લકી વિનર્સ હશે એને સંપૂર્ણ પારદર્શી પદ્ધતિથી જેમાં કોઈ પણ અમારા આયોજકોમાંથી પાર્ટિસિપન્ટ્સ નહીં હશે એવા લકી વિનર્સને અમે 5 સાયકલ પણ ગિફ્ટ કરવાના છે. આ સમગ્ર પ્રક્રિયા અને આ સમગ્ર આયોજનનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય એ છે કે સમાજમાં લોકોને અંગદાન વિશે જાગૃતતા મળે, મેડિકલના ફિલ્ડના લોકોને પણ જાગૃતતા મળે, એક એવું યુગનું નિર્માણ થાય જેમાં મેડિકલ ફિલ્ડ હોય, જેમાં લોકલ લોકો હોય અને જેમાં એવા લોકો હોય કે જે ખરેખર અંગદાનને એક વિશેષ તરીકે લઈ અને અંગદાન કરાવે. ये ज हमारी अपेक्षा है. मुझे लीवर किडनी मिला है. मेरा ऑपरेशन से लगभग 10-11 साल पहले हुआ था और उसके बाद मुझे कोई भी तकलीफ और कुछ भी नहीं आया है. और ये साइक्लोथॉन बेसिकली ऑर्गन अवेयरनेस के ऊपर है. आजकल लोगों के ऑर्गन ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं, तो जितनी ज़्यादा अवेयरनेस होगी उतनी ज़्यादा लोगों को पता चलेगा और उसके बारे में जानकारी होगी. मेरे थ्रू बस यही है कि जितने ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स आए, जितने ज़्यादा लोगों को पता चले ऑर्गन डोनेशन में, ताकि आगे जाके किसी की भी लाइफ डेंजर में या फिर किसी को भी ऑर्गन की नीड हो उनको मिल सके. हर आदमी के घर में कोई ना कोई पीड़ित होता है किसी ना किसी बीमारी से. तो जब भी कोई बीमार होता है तो हम लोग पूछते हैं कि बीमारी का निवारण क्या है, उसका ट्रीटमेंट क्या है. तो आप लोगों के सबके परिवार में कोई ना कोई ऐसा होगा जिसको अंग की ज़रूरत पड़ती होगी और तब जिसके भी घर में किसी या किसी के मित्र में जब भी किसी की ज़रूरत होती है तो आदमी को खुद एक अवेयरनेस होनी चाहिए कि इसके निवारण में हम कैसे मदद कर सकते हैं. अमरेली के बाबरा में गुजरात पुलिस को शर्मसार करने वाली घटना सामने आने से हड़कंप मच गया है. पुलिस समाज के रक्षण के लिए होती है, लेकिन अगर पुलिस ही कानून का उल्लंघन करे तो सवाल उठना लाजमी है. गुजरात के अमरेली के बाबरा में ऐसी ही एक घटना सामने आई है, जिसमें पुलिस कर्मचारी द्वारा 14 साल की नाबालिग पर बार बार दुष्कर्म किया गया होने की शिकायत दर्ज कराई गई है. 4 महीने से नाबालिग को बहला फुसलाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने वाले रविराज सिंह चौहान नामक पुलिसकर्मी के खिलाफ पुलिस थाने में पॉस्को और दुष्कर्म के तहत मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyasa's life journey, the V&M Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. V&M Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow: health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with V&M Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an ATG tax exemption. V&M Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. V&M Foundation, transforming lives,
empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. होटल तारासंस महाराजा सयाजीराव की नगरी में आधुनिकता को संजोती एक ऐसी भव्य होटल जो आपको कराती है कभी न भुला पाने वाला एहसास। तारास किचन के डाइनिंग में आपको मिलता है अलग अलग क्यूजिन्स का डिलीशियस प्योर वेज टेस्ट। तारास कंट्री काफे में फ्रेंड्स और फैमिली के साथ बिताए पल आपको करते हैं तरोताजा। तारास बेकरी बाइट्स की हर एक बाइट आपके टेस्ट बड को करती है सेटिस्फाइड। तारासंस में वेकेशन मनाना हो या स्टेकेशन, आधुनिक लाइफस्टाइल को फुलफिल करता है एक बेहतरीन अनुभव। छोटी बड़ी पार्टी हो या सगाई शादी जैसे बड़े मौके, बिजनेस मीटिंग हो या करनी है कोई इवेंट, तारासंस के अलग अलग कैपेसिटी के बैंक्वेट आपके खास मौके को बनाते हैं बेहद शानदार। होटल तारासंस बिहाइंड यश कॉम्प्लेक्स, गेरी रोड, नियर सुंदरम नगर, गोत्री रोड, वडोदरा। Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350. First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and all-metal sturdy body, BG Electric presents India's first RUV. Himanshu Sales Corporation, your trusted destination for top quality consumer electronics since 1994. टीवी शोरूम से शुरुआत करने के बाद अब गुजरात के अलग अलग शहरों में हिमांशु सेल्स के इलेक्ट्रॉनिक सुपर स्टोर्स, टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रीज, वाटर प्यूरिफायर, वैक्यूम क्लीनर, वाटर कूलर, मिक्सर, ओटीजी और वाटर हीटर, डिफरेंट और अपडेटेड टेक्नोलॉजी के इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हिमांशु सेल्स में अवेलेबल। इस दिवाली अपने घर को नए इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस से सजाने विजिट करें हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन। हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन, G2 सिल्वर प्लाजा, ओल्ड पादरा रोड, वडोदरा, गुजरात। ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। BLDC मतलब बोरिंग लुकिंग, इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। Switch to RR Signature Designer BLDC fans, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। RR Signature fans, आपके काम की बात। Every new year we take a New Year resolution. New Year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. पानेरी एम्ब्रॉयडरी अब नए रंग रूप में। आप पानेरी पहुंचे हैं तो मानो आपकी सारी शॉपिंग हो सकेगी एक ही जगह पर। पानेरी में फेस्टिव कलेक्शन, कैजुअल कलेक्शन, नाइटवेयर, इनरवेयर के साथ अब ज्वेलरी, कई ब्रांड के कॉस्मेटिक्स, पर्स, परफ्यूम और बहुत कुछ। बच्चों से लेकर बड़ों के लिए बेहद खूबसूरत हर कलेक्शन। ट्रेडिशनल ड्रेस चाहिए या स्टाइलिश, पानेरी में सब कुछ वन स्टॉप वन डेस्टिनेशन। खुद के लिए खरीदना हो या दूसरों को गिफ्ट करना हो, पानेरी है सबसे बेस्ट। मस्ट विजिट पानेरी एम्ब्रॉयडरी, 10 अकोटा स्टेडियम रोड, राजनगर सोसाइटी, अकोटा, वडोदरा।
Indians have so many vehicle choices. SUV, CUV, MUV, but only for four-wheelers. Two-wheelers have to choose between the comfort of a scooter or the performance of a bike. That's why BG Electric brings to you with 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and an all-metal body that's super strong. BG Electric presents India's first RUV. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Sri A.D. Vyas's life journey, the V&M Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. V&M Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow: health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with V&M Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an 80G tax exemption. V&M Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. गुजरात की महिसागर नदी से वडोदरा के एक व्यक्ति का शव बरामद हुआ है। गुजरात की महिसागर नदी से एक व्यक्ति का शव बरामद हुआ। मृतक की पहचान वडोदरा के कारेलीबाग क्षेत्र के निवासी प्रवीण सिंह वाघेला के रूप में की गई है। वे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में लोन एडवाइजर के पद पर कार्यरत थे। प्रवीण सिंह 29 मई को अपने घर से ये कहकर निकले थे कि वे बैंक जा रहे हैं। इसके बाद वे अचानक लापता हो गए और लौटकर घर नहीं आए। परिजनों ने उनकी तलाश शुरू की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। 4 दिन बाद 31 मई को लाचनपुरा गांव के पास से गुजरती महिसागर नदी में उनका शव तैरता हुआ मिला। प्रवीण सिंह मारो बाबो छे। तो ये सवार में घरे कहीं गयो कि हूँ जाऊँ छू बैंक में। 29 तारीखे गयो, 12 वागे निकली गयो, पछी घरे नहीं आयो। पछी निकलियो तो 4 वागे मैंने फोन कीधो राजस्थान में। पापा कई छो? मैं घरे ज छूँ। तो पप्पा खेतर वेची दो ने? मैं बेटा वेची दऊँ को ग्राहक आवे तो। एने पछी एने मन कीधुं कि सारू बाबा सारू। पछी फोन एने बंद करी नाख्यो। पछी मैं शक लागो, मैं को शुं छे? पाछळ नदी हती, ए किनारी पर बैठो हतो। एनी जोड़े एने फूल दारू पीवड़ायो, कोई एक शुं खवड़ायो ए मने खबर नथी। पछी एने धक्को मार्यो या पछी कोई माणस भागी गया। आ एकलो आवे एवुं नथी। एने हाथ फ्रेक्चर छे, हाथ અહીંથી ફ્રેક્ચર છે। બાઈક એને ચાલે નહીં એટલે દૂર। હવે આવ્યો કેવી રીતે? એની જોડે કોઈ માણસ છે, પણ મને શક છે ધીરેન્દ્ર સિંહ ઉપર। ધીરેન્દ્ર સિંહના કાવતરા છે। उत्तर प्रदेश का दूधवा टाइगर रिजर्व अब पर्यटकों को एक और आकर्षण का केंद्र दे रहा है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में स्थित भारत नेपाल सीमा पर फैला दूधवा टाइगर रिजर्व सिर्फ बाघों और हाथियों के लिए ही नहीं, बल्कि अब रंग बिरंगी तितलियों के लिए भी चर्चा में है। गर्मी के इस मौसम में यहाँ आने वाले पर्यटक तितलियों की रंगीन उड़ानों को देख मंत्रमुग्ध हो रहे हैं। भारत में तितलियों की करीब 1500 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से लगभग 45 प्रजातियां दूधवा टाइगर रिजर्व में देखी गई है। हाल ही में वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर और जैव विशेषज्ञों के सहयोग से की गई गणना में यह आंकड़ा बढ़कर करीब 160 प्रजातियों तक पहुंच गया है। तितली को तो वो हमेशा हमारा दूधवा में बहुत सारा प्रजाति है। लगभग हम लोग एक इंटरनली मेरा बायोलॉजिस्ट सभी WWF ये लोग मिल के एक काउंटिंग किए गए। काउंटिंग मतलब स्पीसीज आइडेंटिफाई किए गए। उसमें लगभग अभी ये लोग 150-160 तक ये लोग काउंटिंग में आइडेंटिफाई किए गए प्रजाति। बट ये देखिए, ये तो बहुत ज्यादा भी होगा ना, मतलब ये 500 के ऊपर भी हो सकता है ना। सभी प्रजाति को हम लोग को देखने के लिए और थोड़ा अच्छे तरीके प्लान करना पड़ता है। मैं लगातार इंटरनली करता रहते हैं। अभी लगभग 150 से 200 स्पीसीज तक ये लोग आइडेंटिफाई करके रखे हुए हैं।
जम्मू कश्मीर में एक बार फिर बर्फबारी ने आम जनजीवन पर असर डाला है। जम्मू कश्मीर में हुई ताजा बर्फबारी ने 2 प्रमुख सड़कों पर यातायात को प्रभावित किया है। शनिवार को गुरेज बांदीपुरा रोड पर मुगल रोड पर ट्रैफिक मूवमेंट को एहतियातन रोक दिया गया है। ट्रैफिक विभाग के एक अधिकारी ने जानकारी दी कि राजस्थान टॉप पर बर्फबारी के कारण गुरेज बांदीपुरा मार्ग पर यातायात पूरी तरह से रोक दिया गया है। उन्होंने कहा कि अगला आदेश आने तक इस मार्ग पर यातायात निलंबित रहेगा। जम्मू कश्मीर के कई ऊपरी इलाकों में सुबह ताजा बर्फबारी दर्ज की गई। राजस्थान टॉप पर करीब 3 इंच बर्फ गिरी, जबकि पीर की गली में भी 2 से 3 इंच तक बर्फ जमा हो गई। मिनामत ट्रांस क्षेत्र में 1 से 2 इंच बर्फबारी दर्ज की गई। गुजरात के वडोदरा के गोत्री में कुनाल 4 रास्ता पर चलने वाले कपड़ा बाजार को हटाने का विरोध किया गया। वडोदरा के गोत्री में कुनाल 4 रास्ता निकट पिछले कई सालों से कपड़ों का बाजार चलाया जाता है, लेकिन यहां रोजाना सैकड़ों लोगों की भीड़ होने से स्थानीय निवासियों ने आपत्ति जताई थी, जिसके बाद कपड़ा बाजार को हटाने की कवायद शुरू की गई है। कई बार नोटिस देने के बाद वडोदरा महानगर पालिका के अतिक्रमण विभाग की टीम द्वारा बाजार हटाने की कार्यवाही की गई, जिसका महिलाओं ने जमकर विरोध करते हुए आक्रोश जताया। महिलाओं ने उनके ऊपर ही जेसीबी चला देने की बात कहते हुए कार्यवाही को रोकने की कोशिश भी की। चुस्त पुलिस बंदोबस्त के बीच बीएमसी द्वारा इस बाजार को हटाने की कोशिश की गई, लेकिन बड़ी संख्या में मौके पर मौजूद कपड़ा व्यापारियों और खासकर महिलाओं ने आक्रोश जताते हुए उनके रोजगार पर हो रही सख्ती का विरोध किया। गरीब माणस मरी जવાનું છે અમારે આમાં નન્નાના છોકરા એને ભાડે રહેવી છે, ભાડું ખાવાનું પીવાનું કેમનું અમે પૂરું કરવી? અમને નોકરી આપશે, સરકારી નોકરી આપશે અમને? ના ખરીદી નથી લીધું, અમારી મહેનત છે બનાવ્યું છે, એને લેડીઝ લોકો મહેનત છે બનાવ્યું, કોઈ અમને દાબ દબાણ નથી દીધો। આ લોકો કોને નડે છે? કોને નડે છે? કોને આ નડે છે? કોને અહીંયા જાય? ચલો અમારી લડાઈ લડો, અહીંયા જાય। કોને લડે છે? આ ખોટી રીતે દબાણ કરે છે। અમારો કાઈ નિર્દોષ છે। અમારી માંગ એક જ છે, અમારો ફસાણો ના જવો પડે, અમારી માર્કેટ બંધ ના થવી પડે। માર્કેટ બંધ થાય છે તો હંદાનો મોત થવામાં આવશે। હા આ અંદર છોકરા સયા હંદોને વળી જશું। માર્કેટ અમારી બંધ ના થવી પડે। બસ મારી એકી વિનંતી છે કે આ માર્કેટ નડે છે કોને? એને વોટ દેવી છે, વોટ દેવી છે, હંદુ દેવી છે, કોને નડે છે? અમે અહીં 8 વર્ષથી રહી છીએ સાહેબ, 8 વર્ષથી ધંધો કરીએ છીએ। મારા બંને બે કિડની ખરાબ છે, આંતરડી ખરાબ છે, મને થાઇરોઇડ છે, મને બીપી છે, મારા એક છોકરાની વાવ ગાંડી છે, મારા ધંધાના છોકરા છે, એમને આગળ વધારી કે માગવા મોકલવી તમે કહો એ કરી સાહેબ। તો આ અમારી રોજી રોટી નાસી છું સાહેબ। અમે એટલું કહેવા માંગીએ, અમે કશું નહીં કરતા, અમે લેડીઝ લોકો આવીને ધંધો કરીને યાર ચલા જઈએ છીએ। અમે સમાજના આ ઘરે કોઈ કામ ધંધા જઈએ, આ ઘરે અમે કેમ ધંધો કરીએ છીએ, અમારું મન જાણે સાહેબ। અમારા છોકરા એવા બદમાશ નથી, કોઈના ગોળે અમે ઇજ્જતદાર છીએ। હટાવવાની વાત છે, અમારી માંગ છે કે આ ચાલે છે ને અમારા પથારા રહેવા પડે। दरअसल वडोदरा महानगर पालिका द्वारा ये प्लॉट सरकारी होने की बात कही जा रही है, वहीं कोई जमीन निजी मालिकी की होने की बात भी कह रहा है। इसी बीच सालों से यहाँ कपड़े बेचकर घर का गुजर बसर चलाने वाले लोग अचानक बाजार हटा दिए जाने से बेरोजगार हो गए हैं। टीम तो सवारे આવી ગઈ હતી અને એમને જે સમય જોઈતો હતો એ સમય પણ પૂરતો આપવામાં 1 કલાક એમણે માંગ્યો હતો। 1 કલાકથી વધારે આપણે સમય આપ્યો છે, 2.5 થી 3 કલાક જેવો સમય આપ્યો છે અને એમના વકીલશ્રી પણ આવીને ઊભા હતા, અમારા ટેકનિકલ અધિકારીઓએ એમને સાંભળી પણ લીધા છે અને ફરી એમને કન્વે કરી દીધું કે આ અત્યારે એમને સામાન લઈ હટી જાય
અને કાર્યવાહી કરશે. ના એવું એ તો કઈ કહ્યું એમને, એ તો એ માંગણી કરી અમારા ટેકનિકલ અધિકારીએ સાંભળી લીધા. હા, એ કાર્યવાહી એમને અગાઉ પણ ઇન્ટિમેટ કરેલા છે, એ અમારા ટેકનિકલ અધિકારીઓ છે એમને આપું છું.